السلام علیکم دوستو، GN اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، قدیم زمانے میں ہندوستان کے کسی حصے میں ایک نہایت نیک اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے 3 بڑے لڑکے تھے۔ سب سے بڑا حسین، منجلے کا نام علی اور چھوٹا احمد تھا۔ بادشاہ سب سے ایک جیسی محبت کرتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک چچا زاد بہن نور النہار تھی۔ نور النہار بے حد حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ حسین، علی اور احمد تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان کی شادی نور النہار سے ہو۔ بادشاہ بھی اس بات سے واقف تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا تصفیہ ہو جائے۔ بہت غور کے بعد ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بولا کہ تم تینوں سفر کے لیے جاؤ اور میرے لیے اپنی مرضی سے کچھ تحفے لے کر آؤ۔ جس کا تحفہ زیادہ اچھا ہوگا اس سے نور النہار کی شادی ہو جائے گی۔ تینوں بھائیوں نے بادشاہ کی بات کو تسلیم کیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بادشاہ نے معقول رقم دے کر سب کو رخصت کیا۔ رخصت ہوتے ہی وہ شہر کی حدود تک تو ایک ساتھ رہے، پھر الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ بڑے شہزادے حسین کو بش گڑھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ اسی سمت روانہ ہو گیا اور بہت دشوار گزار راستوں کو طے کرتا ہوا وہ وہاں جا پہنچا۔ شہر کی زیبائش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کی رعایا بہت خوشحال تھی۔ زر و جواہرات کی ہر طرف فراوانی نظر آتی تھی۔ ایک روز حسین بازار میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دلال غالیچہ لے کر آیا اور ایک دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا، اگر پسند ہو تو یہ غالیچہ میں 40,000 اشرفیوں میں دے دوں گا۔ حسین نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اس میں کیا خاص کرامات ہیں جو تم اس کی اتنی قیمت مانگ رہے ہو؟ دلال بولا، یہ ایک عجیب چیز ہے، اس پر بیٹھ کر جہاں جانے کا حکم دو گے یہ فوراً اسی جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادہ اس کی یہ صفت سن کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ والد کے لیے اس سے بہتر تحفہ اور کون سا ہوگا۔ چنانچہ اس نے 40,000 اشرفیاں دے کر وہ غالیچہ خرید لیا اور یہ سوچ کر کہ میں اس کی مدد سے ذرا سی دیر میں وطن پہنچ سکتا ہوں، شہر کی تفریح کے لیے مزید قیام کا ارادہ کر لیا۔ تینوں بھائی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ 1 سال کا عرصہ ہونے پر تمام بھائی شہر سے باہر ایک جگہ پر ملیں گے اور ایک ساتھ والد کے پاس جائیں گے۔ حسین مطمئن تھا اور سیر و تفریح میں مشغول رہا۔ ایک روز اس نے وہاں کا بت خانہ دیکھا جہاں پیتل کے قد آدم بت رکھے تھے اور لاتعداد جواہرات بطور نظر وہاں چڑھائے جاتے تھے۔ اس بت خانے کے چاروں طرف باغ تھا، اس میں بھی جگہ جگہ بت نصب تھے۔ قریب ہی شاہی محل تھا، اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں بعض اس طرح بنائی گئی تھیں کہ جہاں چاہو ان کو لے جاؤ۔ محل کے دروازوں پر نہایت عمدہ ہاتھی بنا دیے گئے تھے۔ غرض ایسے محلات تھے کہ حسین ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ جب 5 بھائیوں کے ملنے کا وقت آیا تو حسین اپنے غالیچے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا اور مقررہ جگہ پر پہنچ گیا اور دوسرے 2 بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ علی سفر کرتا ہوا شیراز جا پہنچا اور شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگا اور اس کی تلاش میں تھا کہ اپنے والد کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے کہ ایک روز اس کو بھی ایک سوداگر ملا اور ہاتھی دانت کی 1 گز کے قریب لمبی دوربین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رئیسوں کے قابل تحفہ ہے، اس کی 40,000 اشرفی قیمت ہے۔ علی نے پوچھا کہ اس کا کمال کیا ہے بھائی؟ صرف اتنے سے ہاتھی دانت کے ٹکڑے کی اتنی زیادہ قیمت کوئی بے وقوف شخص بھی نہیں دے سکتا۔ سوداگر کہنے لگا، جناب یہ صرف ہاتھی دانت نہیں ہے، اس میں عجوبہ ہے۔ آپ کو جس چیز کو دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھیے، اس میں ہزاروں میل کا حال بھی اس آئینے کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی نے دوربین لے کر پہلے اپنے باپ کا حال دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا فیصلہ کر رہا ہے۔ علی اس نادر دوربین کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے دل میں سوچا کہ اس کے والد کے لیے اس سے بہتر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے وہ دوربین لے لی اور مقررہ جگہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ دشوار گزار سفر طے کر کے وہاں آن پہنچا اور بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اور تیسرا بھائی شہزادہ احمد تمام بھائیوں سے الگ ہو کر سمرقند پہنچا اور کسی عمدہ تحفے کی تلاش میں پھرتا رہا۔ ایک روز اسے ایک شخص ملا
जो एक मसनूई सेब ला रहा था। इसने अहमद से मुखातिब होकर कहा कि आप किसी मुल्क के शहजादे मालूम होते हैं, ये सेब देखिए, बादशाहों के काबिल तोहफा है। अहमद बोला, इसकी क्या कीमत है? वो कहने लगा 20,000 अशरफियां। अहमद बोला कि भाई इसमें क्या कुदरत है, जाहिर तो ये एक मामूली सेब है। वो शख्स कहने लगा, इसकी तासीर ये है, अगर किसी करीबुल मर्ग बीमार को सुंघा दिया जाए तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। अहमद ने वहाँ के दारुल शफा में कई मरीजों पर तजर्बा किया और जब ये साबित हो गया तो उसने अपने बाप के लिए अजीबोगरीब तोहफा 20,000 अशरफियां देकर खरीद लिया। फिर ये भी मंजिल मकसूद के लिए रवाना हो गया और आखिर अपने तीनों भाइयों से जा मिला। वहाँ तीनों ने अपने अपने तोहफे एक दूसरे को दिखाए और खुद ही कहने लगे कि बज़ाहिर वालिद अब ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि किसका तोहफा उम्दा है। एक रोज सब ने कहा, अली तुम अपनी दूरबीन से देखो, नूरुल निहार क्या कर रही है। अली ने दूरबीन लगाकर हाल देखा और कहने लगा, वो तो सख्त बीमार है और सब इसके गिर्द परेशान बैठे हैं। बाकी दो भाइयों ने भी बारी बारी ये हाल देखा तो परेशान हो गए और हुसैन के गालीचे पर बैठकर हुक्म दिया कि नूरुल निहार के कमरे के सामने हमें पहुंचा दे। गालीचा उड़ा और चंद लम्हों में कमरे के दरवाजे पर आकर ठहर गया। तीनों शहजादे झट अंदर जा पहुंचे तो बादशाह उनको देखकर हैरान रह गया। अहमद ने फौरन सेब निकालकर नूरुल निहार को सुंघाया। उसको उसी वक्त होश आ गया और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई। तीनों शहजादों ने अपने अपने तोहफे बादशाह के सामने पेश किए। बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर कहने लगा, इस वक्त तीनों तोहफों ने बराबर काम दिया है। अगर इनमें से एक भी मौजूद ना होता तो नूरुल निहार अच्छी नहीं हो सकती थी, इसलिए मेरे ख्याल में किसी को फोकियत नहीं दी जा सकती। अब मैं समझता हूँ कि जंगल में जाकर तुम तीनों तीर चलाओ, जिसका तीर सबसे आगे जाएगा मैं उसी से नूरुल निहार की शादी कर दूंगा। तमाम शहजादे राजी हो गए और जंगल में जाकर एक खुले मैदान में तीर चला दिए। अहमद का तीर तो किसी को नजर ना आया, दूर और नजदीक तलाश किया लेकिन इसका कोई पता ना चला। बाकी हुसैन और अली में अली का तीर आगे निकल गया। चुनाचा बादशाह ने नूरुल निहार की शादी अली से कर दी। अहमद और हुसैन इस तकरीब में शरीक ना हुए। हुसैन ने फकीरी इख्तियार कर ली और गोशा नशीन हो गया, लेकिन अहमद परेशान था कि मेरा तीर कहाँ चला गया। चुनाचा वो उसी की तलाश में रवाना हो गया। 3-4 मील आगे जाकर अहमद को अपना तीर जमीन में धंसा हुआ मिल गया। वह हैरान था कि ये तीर यहाँ कैसे आ गया। उसने तीर उठाया और अपने वालिद को दिखाने का इरादा किया कि आपने बहुत जल्दी फैसला कर दिया। इत्तेफाक से उसे वहीं एक दरवाज़ा नजर आने लगा। अहमद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो एक वसी मैदान में एक नफीस महल नजर आया। वो उस तरफ आगे बढ़ा तो अंदर से एक ज़ोरा माताब नौजवान शहजादी चंद कनीज़ों के झरमट में निकली और अहमद के करीब आई। अहमद ने बड़े अदब से सलाम किया। शहजादी ने उसको खुशामदीद कहा और नाम लेकर उसकी खैरियो आफियत पूछी। अहमद हैरान रह गया कि इसको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। आखिर वो ज़ब्त ना कर सका और उसने पूछा कि आप मुझे किस तरह जानती हैं। वो मैजबिन मुस्कुराई और अहमद से कहने लगी, आइए पहले तशरीफ रखिए, फिर मैं तमाम हाल अर्ज करूंगी। अहमद उसके साथ बारादरी में आया, जहां उसको एक तख्त पर बिठा दिया गया और वो नौजवान शहजादी भी उसके करीब बैठ गई। अहमद ने देखा बारादरी में ऐसे लाजवाब जवाहरात लगे हुए थे कि उनकी दौलत के आगे शहजादे की दौलत कुछ भी न थी। इसके बाद वो शहजादी बोली, मैं परियों की नस्ल से हूँ, मेरा नाम परी बानो है। मैं काफ़ी मुद्दत से आपको जानती हूँ। मुझे ये भी मालूम है कि आप तीनों भाई नूरुल निहार से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। मैंने ही आपके वालिद को ये तरीका बताया था कि शहजादों से तोहफे मंगाइए। फिर खुद ही हुसैन को बशगढ़ में गालीचा दिया, अली को शिराज में दूरबीन और तुम्हें समरकंद में सेब। जब इस तरह फैसला ना हो सका तो मैंने ही तुम्हारे वालिद को तीर की तरकीब समझाई, लेकिन मुझे मालूम था तुम्हारा तीर सबसे आगे जाएगा, इसलिए मैंने उसको हवा में रोक लिया और यहाँ लाकर गाड़ दिया। दरअसल यहाँ आपको तकलीफ देने की खतावार मैं ही हूँ। अब आपको इख्तियार है
जो चाहे मुझे सजा दीजिए। अहमद परी बानों को देखकर उस पर आशिक हो चुका था। कहने लगा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि कुदरत ने नूरुल नहार से ज्यादा हसीन शहजादी से मुलाकात करा दी। अब मैं आपका बेदाम गुलाम हूँ। परी बानो मुस्कुरा कर कहने लगी, मुझे तो मजीद कुछ कहना सुनना ही नहीं। सारे वाक़यात सुनकर आपने अंदाजा कर लिया होगा मैं काफी अरसे से आपकी तलबगार कनीज हूँ। अहमद ने मोहब्बत से परी बानो के हाथ को बूसा दिया और आपस में कोलो करार हो गए। अहमद कहने लगा, अच्छा ये तो फरमाइए, हमारा और आपका मेल कैसे होगा? आपके वालिद हमारी शादी करने पर किस तरह तैयार होंगे? परी बानो बोली, इस मामले में मेरे वालिद ने मुझे इख्तियार दे रखा है, आप इसके लिए बिल्कुल फिक्र ना करें। उसके बाद दोनों का निकाह हो गया। तमाम दिन अहमद परियों का नाच देखता रहा। जब काफी रात बीत गई तो दोनों सो गए। गरज दोनों मियाँ बीवी आराम से जिंदगी बसर करने लगे। इसी तरह एक महीना गुजर गया तो एक रोज अहमद ने परी बानो से कहा, क्या मैं अपने वालिदैन से मिलना चाहता हूँ। परी बानो कहने लगी, यूं तो आपको इख्तियार है, जहां दिल चाहे चले जाइए, लेकिन ये समझ लीजिए अगर मुझसे बेवफाई की तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अहमद ने बहुत कसमें खाकर इत्मीनान दिलाया कि मैं सिर्फ मिलकर वापस चला आऊंगा। परी बानो ने ना चाहते हुए उसे इजाजत दे दी और एक निहायत नफीस घोड़ा सवारी के लिए हाजिर किया। अहमद उस पर सवार होकर बाप से मिलने के लिए चला गया। अली की शादी के बाद अहमद और हुसैन नजर न आए तो बादशाह ने वजीर से पूछा। वजीर कहने लगा, हुजूर, हुसैन तो गोशा नशीन हो गए हैं, लेकिन अहमद का पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। बादशाह बहुत परेशान हुआ और उसने पूरे मुल्क में मनादी करा दी कि जो अहमद को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन इसका पता ना चला। आखिर एक रोज बादशाह ने नजूमियों को बुलाकर अहवाल दरियाफ्त किया तो नजूमियों ने हिसाब लगाकर बताया, हुजूर, शहजादा सलामत जिंदा और बड़े ऐशो आराम में हैं और अनकरीब आपसे मिलेंगे। बादशाह इस दिन से उसकी आमद का इंतजार करने लगा। अहमद परी बानो से रुखसत होकर बाप से मिलने चला। अहमद आकर बाप के कदमों में गिर गया। बादशाह ने उठाकर उसे सीने से लगा लिया और पूछने लगा, मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे? मुझे मालूम है कि नूरुल निहार की शादी अली के साथ होने की वजह से तुम नाराज हो गए, लेकिन फिर भी कम से कम मुझे अपना पता तो बता देते। अहमद बोला, मैं अपने तीर की तलाश में गया था और एक ऐसी जगह पहुंच गया कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अब मैं खुश हूँ और जल्दी जल्दी कदम बूसी करता रहूंगा। बादशाह बोला, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे तुम्हारा राज मालूम करने की कोई ख्वाहिश नहीं, बस इतना है कि कभी कभी अपनी सूरत दिखा जाया करो। अहमद ने वादा किया कि वो वक्तन फवक्तन हाजिर होता रहेगा। उसके बाद वो बाप से रुखसत होकर परी बानो के पास आ गया। वो भी उसकी राह देख रही थी। उसने बड़ी मोहब्बत से उसका इस्तकबाल किया और उसके बाद वो फिर ऐशो इशरत से रहने लगे। वो एक लम्हे के लिए भी अहमद को अपनी नजरों से उजल नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये इजाजत दे दी थी कि वो महीने में 3-4 रोज के लिए अपने वालिद से मिलने चले जाया करे। अहमद हर महीने माँ बाप से मिलने जाया करता और हर बार उसकी शान और शौकत पहले से ज्यादा होती। बादशाह के वजीरों में एक वजीर अहमद की शान देखकर हसद करने लगा। एक रोज मौका पाकर इसने शहजादी की शिकायत बादशाह से कर दी। अहमद अपनी रहने की जगह पोशीदा रखते हैं और मैं देखता हूँ कि इनकी हशमत और दौलत रोजाना बढ़ती जा रही है। कहीं वो फौजी ताकत पैदा कर आप पर हमला ना कर दें और आप बेखबरी में नुकसान ना उठा लें। नूरुल निहार की शादी का सिलसिले में वो आपसे नाराज भी हैं। उस वक़्त की ये बात बादशाह को भी खटक गई। इसने हर तरफ आदमी रवाना कर दिए, लेकिन कोई पता ना चला। आखिर इसने एक बूढ़ी जादूगरनी को बुलाया और बोला, तुम अहमद की रिहाइश का मालूम करो कि अहमद कहाँ रहता है। जादूगरनी वादा करके चली गई। जब अहमद के आने का वक़्त आया तो वो मुंतजर थी। अहमद हस्बे दस्तूर बाप से आकर मिला। पहले तो बादशाह ने खुद ही बातों बातों में इसका पता करना चाहा, लेकिन अहमद ने उसे कुछ ना बताया। जब अहमद रुखसत होकर चला तो वो जादूगर कर उसके पीछे चल पड़ी। अहमद जंगल में आकर दरवाजे में दाखिल हो गया। जब जादूगरनी ने देखा तो अहमद गायब था। वो परेशान हो गई। बात ही कुछ ऐसी थी
कि दरवाज़ा किसी को नजर आना मुमकिन नहीं था। वो जादूगरनी बड़ी चालाक थी। इसने दूसरे महीने का इंतजार किया और जब अहमद निकला तो बीमार बनकर रास्ते में पड़ गई। अहमद ने उसका हाल सुना तो बुढ़िया को अपने साथ लाकर परी बानो के सुपर्द कर दिया कि इसकी खबरगिरी करना, और खुद बाप के पास चला गया। परी बानो ने बुढ़िया को देखकर पहचान लिया, लेकिन अहमद की मोहब्बत की वजह से खामोश रही और इसकी अच्छी तरह तवाज़ो की। 2 रोज बाद वो मसनूई मरीज़ा तंदुरुस्त होकर जाने लगी तो परी बानो ने कनीज के साथ उसे दरवाजे से बाहर भेज दिया। बुढ़िया ने पलट कर देखा और दरवाज़ा देखना चाहा तो वहां कुछ भी न था। अहमद अपने बाप के पास रहकर चंद रोज बाद वापस आ गया और बूढ़ी जादूगरनी बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गई और उसे तमाम हाल बयान कर दिया और कहने लगी, अहमद एक सादतमंद है, लेकिन मुमकिन है परी के बहकाने में कोई हरकत ना कर बैठे। वजीर बोला, आप शहजादे को कैद करवा दीजिए, लेकिन सायरा ने मना किया है और कहने लगी, इस तरह परियों से दुश्मनी हो जाएगी और वो सारा मुल्क तबाह व बर्बाद कर देंगी। उनसे दुश्मनी मोल लेना हिमाकत है। आप ऐसा कीजिए कि अब की मर्तबा शहजादा आए तो उससे कहना, मुझे ऐसा खैमा मंगा दो जो आदमी की जेब में आ जाए, और जब खोल कर फैलाएं तो 1 लाख आदमी इसके नीचे आ जाएं। अगर वो शहजादा खैमा ले आया तो मैं चंद चीजें बता दूंगी, आप उनकी फरमाइश कीजिएगा। उसका नतीजा ये होगा कि परी नाराज होकर उसको खुद ही कत्ल कर देगी। ये राय सबने पसंद की और अहमद का इंतजार करने लगे। हस्बे मामूल अहमद आया तो बाप ने बहुत उसकी खातिर मदारत की और एक रोज मौका पाकर कह दिया, बेटा मुझे मालूम हो गया है कि तुम्हारी शादी परी से हुई है और उससे मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी खुशी है। इसलिए मैं ये तो नहीं पूछता कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन एक तोहफे की ख्वाहिश है। तुम अपनी बीवी से कहकर एक ऐसा खैमा ला दो जो एक आदमी की जेब में आ जाए, और जब उसे खोलें तो उसमें 1 लाख आदमी समा जाएं। अहमद बोला, मैंने तो आज तक वहां ऐसा खैमा नहीं देखा, लेकिन मैं परी से दरख्वास्त करूंगा। मैं वादा नहीं करता, क्योंकि ये चीज मेरे इख्तियार में नहीं। अगर मुमकिन हुआ तो जरूर हाजिर हो जाएगा। बादशाह बोला, वो तुम्हारी बीवी है तो वो तुम्हारी ख्वाहिश कैसे रद्द कर सकती है? अगर इसको अपने खामन की कोई परवाह नहीं तो तुम्हें मर्द कहलाते हुए शर्म आनी चाहिए। कम से कम मैं तो तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। अहमद रंजीदा दिल के साथ परी बानो के पास आया। परी बानो ने पूछा, खैर तो है, आज चेहरे पर इतना गर्दो गलाल क्यों है? शहजादे ने बादशाह की ख्वाहिश और तमाम हालात बता दिए और ताज्जुब से कहने लगा, मालूम नहीं मेरे वालिद को मेरे हाल का कैसे पता चला। परी बानो हंसकर कहने लगी, जो बुढ़िया तुम इलाज के लिए लाए थे वो बादशाह की भेजी हुई जादूगरनी सायरा थी। वो सब कुछ देख कर गई है, उसी ने बादशाह को समझाया है। अहमद कहने लगा, मेरे वालिद ने मुझे आज ये कहा है, अगर तुम अपनी बीवी से इतना मरहूब हो तो अपने आप को मर्द कहलवाना छोड़ दो। मुझे इसका बहुत रंज है। परी ने अहमद को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी जान और रूह तुम पर कुर्बान, तुम इतनी सी बात की क्यों फिक्र करते हो? मैं खैमा मंगा देती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बादशाह के मुशीरों ने हालात खराब करने का इरादा कर लिया है। तुम देखना उनकी फरमाइशें बढ़ती जाएंगी और अंजाम में वो खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं सब जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। अहमद परी बानो की बातें सुनकर हैरान रह गया। उसके बाद परी बानो ने खैमा मंगवा दिया और उसको तय करके अहमद को पेश किया। वो खैमा इस कदर छोटा था कि अहमद की जेब में आ गया। 1 महीने तक अहमद परी बानो के साथ रहा और जब महीना खत्म हुआ तो वो खैमा लेकर बाप की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह खैमे को देखकर बज़ाहिर तो बहुत खुश हुआ कि खैमा तो आ गया। उसके बाद बुढ़िया बोली, अब ये फरमाइश कीजिए कि शेरों के चश्मे का पानी लाओ। चुनाचा जब बादशाह और अहमद खाना खाने के लिए बैठे तो बादशाह ने खैमे की तारीफ करने के बाद कहा, बेटा अपनी बीवी से कहो कि शेरों के चश्मे का पानी मंगा दो। उसकी खासियत ये है, जिस बीमार को ये पिलाया जाए तो वो तंदुरुस्त हो जाता है। ऐसी नायाब चीज का होना बड़ी मसरत की बात है और मैं चाहता हूँ
करीबो जवार के बादशाह मेरी हुकूमत की तारीफ करें। अहमद बोला, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन आपकी फरमाइश उन तक पहुंचा दूंगा। फिर वो अपने बाप से इजाज़त लेकर परी बानो के पास आया और बाप ने जो कुछ कहा था उसने परी बानो को बता दिया। पहले तो परी बानो कुछ देर सोचती रही और फिर कहने लगी, वो बदनसीब बूढ़ी जादूगरनी साहिरा बादशाह को बहकाती रहती है और ऐसी ऐसी चीज़ों की फरमाइश कराती है जिनकी फरमाइश से परी तुम्हें कत्ल कर दे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि परी बानो अपने शोहर से कितना प्यार करती है और वो सारी फरमाइशें पूरी करके अंजाम का राज उन्हीं के सर पर तबाही लाएगी। उसके बाद शहजादी ने कहा, मैं तुम्हें एक गेंद दूंगी और 4 गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े। दरवाजे से बाहर निकाल कर गेंद को जमीन पर डाल दो और उसके पीछे पीछे चले जाना। वो तुम्हें शेरों के चश्मे पर ले जाएगी। वहां 4 शेर हैं, 2 पहरे पर जागते हैं और 2 सोते हैं। तुम्हें देखकर सोते हुए शेर बेदार हो जाएंगे। उस वक्त ये गोश्त के टुकड़े उनके आगे डाल देना। जब वो खाने में मसरूफ हो जाएं, तो तुम जल्दी से पानी लेकर घोड़े पर सवार होकर चले आना। फिर उसने एक गेंद अहमद को दी और बकरी मंगाकर ज़िबा की। उसके 4 टुकड़े कराकर घोड़े पर बंधवा दिए और अहमद को रुखसत कर दिया। अहमद गेंद के पीछे शेरों के चश्मे पर जा पहुंचा। जो ही शेरों ने इसको देखा, दूसरे शेरों को भी जगा दिया और सब मिलकर अहमद की तरफ दौड़े। अहमद ने गोश्त के टुकड़े उनके आगे डाल दिए और जल्दी से चश्मे से मशकीज़ा भरकर घोड़े पर सवार हो गया। सीधा अपने बाप के महल में पहुंचा, पानी लेकर सामने रख दिया। बाप बहुत खुश हुआ और कहने लगा, शहजादे तुम्हारी बीवी वफादार है। फिर अहमद को कुछ दिन मेहमान रखा और खुद खुफिया तौर पर जादूगरनी सायरा से मिला और कहने लगा, शहजादा तो शेरों के चश्मे का पानी भी ले आया और उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा। ये सुनकर सायरा भी डर गई और कहने लगी, शहजादी की माशूका कोई बहुत ही ताकतवर परी है। अब आप इससे कहिए, मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जिसका कद 10 गुना और दाढ़ी 20 गज हो, लेकिन इसका एक बाल भी जमीन पर ना लगे, आंखें अंदर को धसी हुई हों और मूछें कानों पर लपेटी हों। मुझे उम्मीद है ये फरमाइश वो पूरी नहीं कर सकेगी और जरूर शहजादा जिनके हाथों मारा जाएगा। बादशाह ने बूढ़ी सायरा को रुखसत कर दिया और शहजादे के पास आया और उससे अपनी फरमाइश का जिक्र किया। शहजादा बाप की फरमाइश से तंग आकर परी बानो के पास आया और सारा हाल कह सुनाया। परी बानो हंसी और कहने लगी, ये फरमाइश तो कुछ मुश्किल नहीं। सायरा ने जिस शख्स का हुलिया बताया है वो मेरा भाई है। जब तुम जाओगे तो मैं उसे मिला दूंगी। उम्मीद है उनका अंजाम भी करीब आ गया है। फिर दोनों महीना भर तक ऐशो इशरत में मशगूल रहे। जब शहजादे की रवानगी का वक़्त आया तो परी बानो ने एक अंगीठी रोशन करके कुछ पढ़ा और अपने सर का बाल तोड़कर जलाया। उसी वक़्त एक हैबतनाक आदमी सामने आकर खड़ा हो गया और करीब था कि शहजादा गश खाकर गिर जाता, लेकिन इसने बड़े ज़बत से अपने आप पर काबू किया और उठकर आने वाले शख्स को सलाम किया और परी बानो ने उससे कहा, भाई शेरू बैठो। शेरू ने अहमद को देखकर पूछा कि ये आतमजात कौन है। परी बानो ने शर्मा कर जवाब दिया, भाई ये मेरा शौहर है। जिस वक्त मैंने शादी की थी आपको काफ में थे, इसलिए मैं आपको ना बुला सकी। शेरू ने अहमद को प्यार किया। फिर परी बानो से पूछा कि इस वक्त मुझे क्यों बुलाया। परी बानो ने शुरू से आखिर तक का तमाम किस्सा बयान कर दिया और बोली, ये तमाम फरेब एक वजीर और एक बूढ़ी सायरा के हैं। वो सब ये फरमाइशें करवाती है। शेरू उठकर खड़ा हो गया और अहमद से कहने लगा, आओ अजीज भाई मैं तुम्हारे साथ चलूं। अहमद उसके साथ महल से बाहर आया और दोनों बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जिसने शेरू को देखा वो चीखें मारता और दूर भागकर चला जाता। दरबार तक पहुंचते पहुंचते सारे शहर में भगदड़ मच गई, यहाँ तक कि अहमद शेरू को लिए हुए बादशाह के सामने पहुंच गया। शेरू ने बादशाह से पूछा, तुमने मुझे क्यों बुलाया। उसकी सूरत देखकर बादशाह अंधे मुंह गिर पड़ा। तमाम वजीर और अमीर खौफ से थर थर कांपने लगे। जब बादशाह ने शेरू को कोई जवाब ना दिया
तो उसने गुस्से में अपना 22 मन गज उठाकर उसके सर पर दे मारा। बादशाह तख्त पर गिर गया। फिर उसने तमाम हासिद अमराव वज़रा को एक एक करके गज मारकर ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक वजीर जो अहमद का हामी था उसकी सिफारिश से बच गया। उसके बाद शेरों ने रियाया की मिजाज पुरसी का इरादा किया, लेकिन अहमद बोला इनका कोई कसूर नहीं। फिर शेरों ने उस खबीर सायरा बूढ़ी को बुलाकर अपने पास खड़ा करके कत्ल करा दिया, जो इस तमाम फसाद की जड़ थी। इसके बाद इसने अहमद को तख्त पर बिठाया और सबको बुलाकर हल्फे वफादारी लिया। अहमद की मर्जी से अली को सूबे का हाकिम मुकर्रर करके भेज दिया। अहमद ने हुसैन को बुलाकर पूछा कि आपको जहां की हुकूमत चाहिए आपको वहां भेज दिया जाएगा। हुसैन ने शुक्रिया अदा करके कहा कि मैं गोशा नशीन रहना चाहता हूँ। अहमद बोला आपकी मर्जी, अगर किसी वक्त कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे याद कर लीजिएगा। अब अहमद ने यहाँ महल में रहना शुरू कर दिया। परी बानो भी महल में आ गई और अपने प्यारे शौहर के साथ रहने लगी। शेरू वापस चला गया और जाता हुआ कह गया अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो बेतकल्लुफ मुझे बुला लेना। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।